मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, ये ग्राफिक्स है ऑफ डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट में, जहां पर कंटिन्यूअस उतार चढ़ाव आता रहा है। शमिका जी, इतना बड़ा फॉल बोला जा रहा है 90 रुपीज़ फॉर $1। अगर इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट दिख रहा है। मारिया, सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि जो एक्सचेंज रेट जो होता है ना, रुपी का वैल्यू vis-a-vis डॉलर, या you should not confuse that with the health or strength of the economy. That is telling you the exchange. What is happening right now is fantastic for exporters. I think we have a very narrow way of looking at a बहुत simplistic economy. Unfortunately, इतना simple एक equation नहीं होता है. अब जैसे सुमिता जी mentioned the minimum wage. Minimum wage, let me tell you, 1960, early 1960s में Mahalanobis ने warn किया था पंडित नेहरू को कि आप minimum wage legislation लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन this is not the right time. Japan has had 100 years of economic growth. Then they brought in these legislation, which are progressive legislations. आप शुरुआत में ही आपको ऐसे costly policies चाहिए because they sound right, but you can't afford it as a nation. It's very important to understand that economy is far more complex than ये जो simple narratives होते हैं. And what we have now done is because the economy is ready. So everything that Sumita ji explained, now you can do these things. Now we can, because UPI is possible, your economy is gradually anyway moving towards more formal structures. You can contract the labor. Many things, many payments are now, it's not cash anymore, right? So your economy ke jo basic structure hai, it has already moved towards what is amenable for a faster formal growth. Now, why does the formal part of it matter? Because you want to be able to access credit, you want to be able to avail the kind of benefits, certain matching benefits from state, etc. These things are possible only because now we have the resources and the underlying infrastructure which can make it possible. So हर चीज़ का एक समय होता है. तो आप बोलती हैं कि ये जो गिरावट है उसको नहीं देखना चाहिए. बिल्कुल. Don't confuse this with strength of Indian economy. This, what is happening right now, is very good for our exporters. And the real value, meaning what should be, that is determined based on the surpluses and the trade relations we have with the rest of the world, particularly markets where we are exporting from. Now, one other thing, Maria, जो कि शायद लोग confuse कर जाते हैं कि इंडिया में जो हमारा domestic market है, GDP का almost 70% है. In China, the domestic market is only 30% of the GDP. So global जब turmoil होता है, it affects an economy which is like China, South Korea, Japan, etc. because for them, external markets are far more important. In India, it's not. So therefore, whether it is the tariff war, whether it is talk of de-dollarization because, through BRICS, etc. A lot of these pressures we are able to withstand simply because our domestic market is almost like a strategic factor right now. We can withstand a lot of these pressures because your domestic market is going from strength to strength. तो इसी लॉजिक पे अगर हम सुमिता द्वारा ये आपसे सवाल ये पूछेंगे कि क्योंकि अभी ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है, इंडिया पर 50% पेनल्टी टैरिफ लगा हुआ है, बाकी सब देशों में 25% बहुत सारे देशों में है, लेकिन यहाँ पर रशियन ऑयल की वजह से एडिशनल 25% है. सो 50% Don't legitimize, it's not Russian oil and you know that. Yes, absolutely. I mean, it's one man's yes. whims and fancy. Yes. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर रुपी डॉलर का कन्वर्जन रेट पर इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ी हूँ, लेकिन ये प्रश्न का एकदम से एज एन इकोनॉमिस्ट उत्तर नहीं दे पाऊँगी.
लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहूँगी। अभी जैसे शमिका जी ने कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड एक हमारी स्ट्रेंथ है, और अभी दुनिया में जो हो रहा है, यूएस के जो हमारे ऊपर हाई टैरिफ्स हैं, और यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे पेट्रोलियम के गुड्स, हमारा फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मैकेनिकल गुड्स, काफ़ी हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट में। और इसमें कई लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, एपरल है, जेम्स एंड ज्वेलरी लेबर इंटेंसिव है। तो ये टैरिफ लगने से प्रभाव लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन साथ ही में हमने देखा कि भारत में एक रिफॉर्म हुआ जीएसटी रैशनलाइजेशन का, जिससे डोमेस्टिक डिमांड को स्टिमुलेट किया गया, और वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी साथ ही आया और अपने एफटीएस पे काम और भी तेज़ी से बढ़ा, ताकि हम डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, चाहे वो ईयू हो या जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ की मार्केट हो, मिडल ईस्ट हो। तो इस तरह से और भी बहुत लीवर्स ऑफ ग्रोथ पर काम हुआ, मोमेंटम मिला इकोनॉमी को, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि आज हमारा Q2 का ग्रोथ रेट 8% से ज़्यादा, 6 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट आया, जबकि इतना डिफ़िकल्ट टाइम हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। और साथ में हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट को आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये एक रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड है, जिसका मतलब उन्होंने समझाया, रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड मतलब हाई ग्रोथ रेट एंड लो इन्फ्लेशन, मतलब जो इंडिया में इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी ग्रोथ के लिए ये आइडियल टाइम है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हमारा ग्रॉस एफडीआई पिछले साल से ज़्यादा है, और नेट एफडीआई भी पिछले साल से ज़्यादा है, और इस पर बहुत काम चल रहा है। जैसे आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस मोड में अब है, तो और भी रिफॉर्म्स होंगे, जिससे ये जो भी आप कह रहे हैं डॉलर का अगर कुछ प्रभाव है, या हमारे इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर पर कुछ प्रभाव है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो वीज़ा का इशू या यूएस मार्केट में हमारे लोगों के जाने पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ हम अपने देश में देख सकते हैं कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, विच आर बेसिकली ऑफ शोरिंग ऑफ सर्विसेज बाय एमएनसीज, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी इंडिया इसमें ग्लोबल हब है, तो उसकी हम और भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर चीज़ का प्रभाव एक होलिस्टिक वे में देखना पड़ता है।